कभी आपने नोटिस करा है कुछ लोग होते हैं जो किसी को इम्प्रेस करने का ट्राई नहीं करते बट दे नेचुरली स्टैंड्स आउट. इट्स बिकॉज दे हैव अ पर्सनालिटी ऑफ देयर ओन. दे हैव देयर ओन ओरिजिनल ओपिनियंस. दे आर ऑथेंटिक. एक एग्जाम्पल से समझते हैं. थिंक ऑफ अ पर्सन दैट यू रियली लाइक और एडमायर. फॉर मी इट्स प्रियंका चोपड़ा. शी इज अमेजिंगली टैलेंटेड, स्मार्ट, ब्यूटिफुल वुमन who takes stands for women globally, and perhaps the only Indian actress who has achieved such heights. And she has a magnetic personality. आपको पता होगा if you watch her podcast or interviews with someone. I just love this woman. And in this video, we are going to discuss how you can build your own personality. So let's start. So the first step is to become self-aware. आपको लाइफ में जो भी करना है, आपको जैसा भी इंसान बनना है, आपको जो भी ड्रीम लाइफ आपके लिए बिल्ड करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो कि हम अभी कहाँ स्टैंड करते हैं. जब आपको आपके करंट सेल्फ के बारे में पता होगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू मूव टूवर्ड्स योर आइडियल सेल्फ. सो सेल्फ अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग, एवरी स्किल यू वांट टू बिल्ड. एंड सेल्फ अवेयर होने के लिए वी हैव टू डू शैडो वर्क. Shadow work is a technique of accepting, integrating, understanding the parts of you that you hide, deny, or judge, maybe consciously or unconsciously. So basically, in shadow work, the shadow word stands for the trait, the personality traits that you have, either good or bad, and you are not aware about it. And because of that lack of awareness, you overreact to maybe small things or situations. You get angry, यू गेट हर्ट बाई पीपल. आप अपने आप को सेल्फ सैबोटाज करते हो. तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं. इन माई फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज आई यूज टू कंपेयर माई सेल्फ अ लॉट टू अदर गर्ल्स. द गर्ल्स हु वर वेरी ब्यूटिफुल, स्मार्ट. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे नहीं पता था कि मेरी अपनी स्ट्रेंथ क्या है. मैं खुद को अच्छे से नहीं जानती थी कि मुझ में भी बहुत सारी खूबियाँ हैं. इसीलिए मैं खुद को उनसे कंपेयर करती थी. बट व्हेन आई स्टार्टेड शैडो वर्क, व्हेन आई रियलाइज्ड देयर आर सो मेनी स्ट्रेंथ्स and things that is there in me that I really love about myself at this point of time. So to become aware, you have to do shadow work. And this is the list of questions that I'm sharing with you. You have to answer these questions honestly and without any judgment. After answering these questions, you will exactly know what are your strengths, what are your weaknesses, what are your triggers, and what are the things that hurts you or the things that you need to work on. And you have to make a list of all these things, all these changes that you want in yourself or in your life. Next step is to be original. You have to know what are your values, what do you believe in. आप कहीं कुछ पढ़ रहे हो, किसी को सुन रहे हो, ऐसे ही मत एग्री करो. सोचो कि वो बंदा उस चीज़ को किस पर्सपेक्टिव से बोल रहा है. Develop the skill of critical thinking. Question the norms, question the societal beauty standards. On internet सब आपको ज्ञान देंगे. मैं भी काइंड ऑफ ज्ञान ही दे रही हूँ, बट ज़रूरी नहीं है आप मेरी हर बात से एग्री करो. आपको जो सही लगता है, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ बताया, आपको लगता है कि हाँ ये इम्प्लीमेंट करने से सच में मेरी लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे, पिक दैट वन थिंग. वी लाइक पीपल जिनके खुद के ओपिनियंस होते हैं. एंड इसके लिए यू हैव टू बिल्ड नॉलेज अबाउट द थिंग्स यू रियली वांट टू नो. रीड बुक्स ऑन फिलॉसफी, ऑन हिस्ट्री, on any area that you are interested in. For example, I love philosophy. I love to find about the existence of life, how human evolved over time. So find your interest, build knowledge, read articles, read books. There are so many books and there is tons of knowledge in that. So pick any book. You can start with The Courage to be Disliked. Yes, be original, build knowledge, and have your opinions and your own perspective. Now the third step is to be emotionally intelligent. That basically means कि आपको अपने emotions पे control होना चाहिए. अब इसके लिए the foundational step is to be self-aware. अगर आपको पता ही नहीं होगा आप कैसा feel कर रहे हो तो you will not be able to deal with it. For example, अगर मैं आपसे पूछूं कि पिछले 2 हफ्ते में आपको कैसा फील हुआ है इमोशनली, क्या आप खुश थे, क्या आप दुखी थे, अगर आप खुश थे तो क्यों थे, अगर दुखी थे तो क्यों थे. सो यू शुड नो व्हाट आर योर थॉट पैटर्न्स. एंड इमोशनल इंटेलिजेंस किसी इंसान का तब पता चलता है व्हेन यू आर इन अ स्ट्रेस्ड और प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, कि कोई आपको कुछ बोल रहा है एंड आप उस चीज़ से एग्री नहीं करते हो, बट वो सुनाई जा रहा है. तो ऐसा नहीं करना कि आप बस चिल्ला दोगे उस इंसान पे या हाथ उठा दोगे.
टेक अ पॉज ऑफ 5 seconds, ब्रीद इन ब्रीद आउट. आई नो कि मतलब आपको लग रहा हो कि हाँ ये कहाँ ही काम आता है, बट ट्रस्ट मी, आपको थोड़ा सा पॉज लेना है, सोचना है कि उस इंसान का पर्सपेक्टिव क्या है और वो मेरे पर्सपेक्टिव को क्यों नहीं समझ पा रहा है. देन यू हैव टू गिव दैट पर्सन अ वाइज एंड लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ योर पर्सपेक्टिव, एंड आई एम डैम श्योर कि वो इंसान समझेगा. हैव बाउंड्रीज फॉर योर सेल्फ, चाहे वो फ्रेंडशिप हो या वर्क प्लेस हो, कि ये मेरे दायरे हैं. अगर कोई इंसान मुझे इससे ज़्यादा कुछ बोलता है, देन यू विल टेक योर स्टैंड, यू विल स्पीक अप फॉर योर सेल्फ. सो टू समराइज, आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में थोड़ा कामली रिएक्ट की जगह रिस्पॉन्ड करना है, लॉजिकली एंड वाइजली. यू शुड हैव बाउंड्रीज. अगर कोई इंसान आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस करता है तो यू हैव टू एक्सप्लेन दैट पर्सन दैट वाई इट वॉजंट राइट एंड वाई यू वॉन्ट एक्सेप्ट इट इन फ्यूचर. एंड अगर कोई चीज़ आपको ड्रेन कर रही है, कोई इंसान आपको ड्रेन कर रहा है, देन कट दैट पर्सन ऑफ. से assertively no to the things that drains your energy, because your energy is very precious. Next is communication skills. एंड कम्युनिकेशन स्किल्स में ऐसा नहीं है कि अगर आपने इंग्लिश मास्टर कर लिया, आप एकदम करेक्ट इंग्लिश बोलते हो, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है. ऐसा नहीं है. अगर आप टूटी फूटी इंग्लिश में भी लोगों को कुछ समझा रहे हो जो लॉजिकल है, रेलेवेंट है, एंड आप उसे कन्विक्शन के साथ बोल रहे हो, तो लोग सुनेंगे आपको. एंड मैं ये नहीं कह रही कि आप फिर बिल्कुल ही इंग्लिश नहीं सीखोगे, नहीं, ऑब्वियसली लैंग्वेज तो सीखनी पड़ेगी, बट उसके साथ और भी चीज़ें हैं जिन पे वर्क करना है ताकि आपकी ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो सके, विच इंक्लूड्स कॉन्फिडेंस, नॉलेज, सेल्फ एक्सेप्टेंस. तो ऐसा है कि आप खुद को कॉन्फिडेंटली तभी एक्सप्रेस कर पाओगे व्हेन यू आर नॉट वरिंग अबाउट पीपल्स जजमेंट, कि वो आपको जज करेंगे. आप रिहर्सल कर रहे हो सेंटेंसेस, क्या मुझे ये चीज़ बोलनी चाहिए, अगर मैंने बोल दी तो ये लोग हंसेंगे तो नहीं. जब वो सब आपके दिमाग से निकलेगा, दैन दैट्स वेयर यू विल बी एबल टू एक्सप्रेस योर ट्रू सेल्फ. एंड ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गई हूँ, आई एम ऑल्सो ऑन दैट जर्नी. देर आर सम पीपल जिनके साथ मैं एकदम फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती हूँ, एंड देर आर पीपल हु डोंट मैचेस माई वाइब, जिनके साथ मुझे नहीं फ्री फील होता कि मैं कुछ भी एकदम अच्छे से एक्सप्रेस कर पाऊँ. वहाँ मैं चुप रहती हूँ, मेरा मन करता है तो मैं कुछ बोलती हूँ, अदरवाइज आई लिसन टू पीपल्स स्टोरी एंड आई genuinely enjoy listening to people's story. And jahan I feel that safe space where I can share my things, I do that. And अगर आपको कभी confidently कोई workshop presentation देनी है स्टेज पे, उस टाइम पे आपको पहले अपने मन से ये थॉट निकाल देना है कि ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे. अगर सोचते भी हैं कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो 5 मिनट सोचेंगे फिर भूल जाएंगे. इट जस्ट यू योर सेल्फ टेलिंग दैट कि वो क्या सोचेंगे. तो आपको ये थॉट निकाल देना है अपने मन से, एंड देन यू विल फील सो फ्री. पहले मुझे बहुत स्टेज फियर था और मेरे मन में बस यही चलता रहता था, ओ माय गॉड मैं ये बोल रही हूँ, ये लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या ये मुझे पसंद कर रहे हैं. एंड व्हेन आई स्टॉप्ड डूइंग दैट, क्योंकि मैं नहीं कंट्रोल कर सकती लोगों के थॉट्स मेरे बारे में, मैं कंट्रोल कर सकती हूँ कि मैं क्या फील कर रही हूँ. तो आई रिसेंटली डिलीवर्ड दिस वर्कशॉप ऑन विजन बोर्ड एंड आई वॉज फीलिंग सो कॉन्फिडेंट, एंड इट कम्स विद प्रैक्टिस. मैं नंबर भूल गई कौन सा था. नेक्स्ट इज बिल्ड कॉम्पिटेंस. तो आप जिस भी फील्ड में हो, लाइक आई एम फ्रॉम मार्केटिंग, इफ़ यू आर फ्रॉम टेक और मेडिकल, choose one skill of your interest that can make you money and just master it, become expert of it. उस नीश में मतलब तुम इतना घुस जाओ, तुम इतना सीख लो कि भाई वो चीज़ के बारे में अगर कोई भी कुछ भी तुमसे पूछे तुम्हें पता हो, एंड इट शुड बी रिलेटेड टू योर करियर. Pick that one area, क्योंकि for example if it's marketing, it's very diverse, there are so many things in marketing, social media marketing, influencer marketing, performance marketing. And if you like social media marketing, तो भाई सब सीख लो social media marketing के बारे में, everything. That's how you build confidence and you prepare yourself to earn more money, because everyone need an expert. Next is contribution to others, whether it's your family, friends, your society, your country. So it's like we all are human and we always want to be liked by others. We always want to be seen and considered in any group or any meeting. And कुछ लोग होते हैं जो नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं just because they are not the best version of themselves right now. So be that person जो biased नहीं है, जो हर किसी के ओपिनियन से पर्सपेक्टिव को जानना चाहता है.
बी दैट पर्सन जिसे लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, बी दैट पर्सन जो लोगों की जेन्युइनली केयर करता है. फॉर एग्जाम्पल, in my first year of college again, I had this very deep urge to be liked by people, to be seen and heard, कि मैं अगर ग्रुप में चुप बैठी हूँ तो भाई लोग मुझसे खुद से बात करें. यहाँ आपको खुद को भी थोड़ा पुश करना पड़ेगा. खुद लोगों से बात करो, बी देयर फॉर देम, जेन्युइनली केयर फॉर देम, बी नाइस विद देम. एंड जो सही लोग होंगे आपकी लाइफ में, दे विल रेसिप्रोकेट इट. एंड इफ़ यू फील कि मैं भाई सब कर रही हूँ, आई एम genuinely caring for people, I'm there to support them, still they are not reciprocating it back, then you are with the wrong people. Cut them off and be with the people who genuinely cares for you, supports you, respects you. एंड अगर वो लोग अभी आपके लाइफ में नहीं है तो बी होपफुल, वो ज़रूर आएंगे. तब तक यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ. लास्ट बट नॉट लीस्ट इज बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर यू हैव इन योर लाइफ. दैट्स हाउ यू अट्रैक्ट मोर थिंग्स. बी काइंड टू पीपल. कभी भी किसी की वीकनेसेस पे मत हंसो. ऑलवेज बिल्ड दैट स्पेस वेयर एवरी वन इज फील एम्पावर्ड बाई यू. Express your love to your family, your friends. Travel the world. Always be curious to learn new things. Just live your life to the fullest. And subscribe to this channel so that we can grow together. Thank you so much for watching, and I will see you in my next video. Till then, bye bye.